Good afternoon, friends. Last lecture we have discussed some basic concept of the solution. Today we will discuss next point, that is a ways of the expressing the concentration of the solution. This point is very important only for the NEET and what JEE examination. This point we have already studied in the 11th standard. बट हियर आपको फिर से ये पॉइंट थोड़ा इंट्रोडक्टरी उसका क्या करना है, उसकी इंट्रोडक्टरी उसका डिस्कशन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिव द हेडिंग वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द concentration of solution. The concentration of the solution is expressed by the different ways. The first important is that is percentage by mass. सबसे पहले देखेंगे percentage by mass. What is my percentage by mass? It is defined as the mass of the solute is a present in 100 gram of solution is called percentage by mass. The mass of the solute is a present in 100 gram of the what solution. उसे क्या कहते हैं? percentage by mass. Percentage by mass is denoted by W by W. They are determined by the percentage by mass is equal to, क्या फार्मूला है? mass of solute divided by mass of solution into hundreds. उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, mass of solute divided by mass of solute plus mass of what solvent into hundreds. Okay, if W2 gram of the solvents is present in W gram of the solution, then we can determine the percentage by mass. Percentage by mass is equal to W2 divided by W into what hundreds. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल 10% ग्लूकोज सोल्यूशन मीन्स, उसका मीनिंग होता है 10 ग्राम ग्लूकोज एंड 90 ग्राम वाटर्स इन 100 ग्राम ऑफ दी सोल्यूशन. 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज होगा तो दैट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? 10% ग्लूकोज सोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट टर्म, अभी नेक्स्ट टर्म देखेंगे. गिव द हेडिंग परसेंटेज बाय वॉल्यूम. व्हाट इज माय परसेंटेज बाय वॉल्यूम? Second ways है percentage by volume. The volume of the solute is present in the 100 ml of solution. 100 ml of solution में कितना क्या है? solute present है, is called, उसे क्या कहते हैं? percentage by volume. It is denoted by percentage by V by V. Its formula, उसका formula क्या है? percentage by volume is equal to, देखिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन into hundreds. Another formula is volume of solute divided by volume of solute plus volume of solvents into hundreds. If the solute and solvents both terms are present in the liquids,
Its concentration we can easily determine by the किसे परसेंटेज बाय वॉल्यूम से डिटरमाइन किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल 5% अल्कोहल सोल्यूशन मीन्स उसका मीनिंग होता है 5 ml अल्कोहल and 95 ml waters in 100 ml of solution. 100 ml ऑफ सोल्यूशन में 5 ml अल्कोहल होगा तो दैट इज नोन एज, उसे कितना परसेंट सोल्यूशन कहा जाता है, 5% अल्कोहल सोल्यूशन. दिस इज अ सेकंड वेज टू डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन परसेंटेज बाय वॉल्यूम. नेक्स्ट थर्ड वेज देखेंगे कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का. गिव द हेडिंग मोल फ्रैक्शन. कौन सा? मोल फ्रैक्शन. थर्ड वन इज अ मोल फ्रैक्शन. व्हाट इज बाय मोल फ्रैक्शन? आपको मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए. मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन is defined as the ratio of the number of moles of the component to the total number of moles of the component in the solution. each squad उसे क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन. सिंपल डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन की. मोल फ्रैक्शन ऑफ द एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन is defined as the ratio of the number of moles of the component to the total number of moles of the component in the solution is called, उसे क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन. The mole fraction is denoted by the x से. मोल फ्रैक्शन कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है? x से. The mole fraction is equal to क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट divided by total number of moles of solute and solvents in solution. ये फार्मूला ख्याल में रखना है. मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट divided by the total number of moles of the solute and solvent in the किसमें? solution में. देखो number of moles is determined by using the formula weight of substance divided by the molecular mass of the substance. आपको कोई substance का number of moles determine करना है तो उसके लिए फार्मूला है n is equal to weight of substance divided by the molecular mass of the substance. If N1 is the number of moles of the solvents and N2 is the number of moles of the किसके? solute के. देखिए कंसीडर करेंगे N1 is the number of moles of the solvent and N2 is the number of moles of the किसके? solute के. Now देखो अभी मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करेंगे सॉल्वेंट का एंड सोल्यूट का. बट बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन यू मस्ट नो द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? इज इक्वल टू n1 प्लस कितना? n2. इतने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन द किसमें? सॉल्यूशन में. अभी उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का एंड किसका डिटरमाइन करेंगे? सोल्यूट का. देखिए x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट्स n1 divided by the n1 plus what? n2. आणि the mole fraction of the solute n2 divided by the n1 plus what? n2. अभी यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? सोल्यूट. नाउ अभी द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट की x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n1 upon n1 plus n2 plus n2 upon n1 plus n2 is equal to n1 plus n2 divided by n1 plus n2 is equal to what? 1. The sum of the mole fraction of solvent and mole fraction of the solute is equal to 1. The any
any solution the sum of the mole fraction of the solute and a solvent is equal to क्या रहती है 1 रहती है, यूनिटी रहती है. Therefore the mole fraction is the unitless quantity and they are the independent on the temperature. मोल फ्रैक्शन ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है. कितना ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्यूशन का क्या चेंज नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन. देयरफॉर द मोल फ्रैक्शन इज द इंडिपेंडेंट ऑन द किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, और एक पॉइंट देखेंगे. फोर्थ वन इज दैट इज द मोलैरिटी. कौन सा वेज देखना है आपको, मोलैरिटी. दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट in the to determination of the any concentration of the solution. Molarity, abhi what is my molarity? The number of the moles of the solute is present in the 1 liter of the solution. इस कॉर्ड उसे क्या कहते हैं, मोलैरिटी. It is defined as the number of the moles of the solute is present in the 1 liter of the solution. इस कॉर्ड उसे क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं. मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एम से मोलैरिटी डिनोट किया जाता है. मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें, डीएम क्यूब में. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको पता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ व्हाट, सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब. जब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाता है तब उसका फार्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज अ फार्मूला टू डिटर्मिनेशन ऑफ द, क्या डिटरमाइन करने के लिए, मोलैरिटी डिटरमाइन करने के लिए. इफ 1 mole of the solute is present in the 1 liter of the solution, इस कॉर्ड उसे क्या कहते हैं, 1 molar solution कहते हैं. जब 1 मोल सोल्यूट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में होगा तो दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, 1 molar solution कहते हैं. The molarity is a change with the temperature. टेम्परेचर चेंज किया तो मोलैरिटी क्या होती है, चेंज होती है. Therefore the molarity is a independent on the molarity, किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड. क्योंकि हीट करने के वजह से वो लिक्विड किस में जाता है, वेपर में. Therefore सॉल्यूशन की क्या चेंज होती है, मोलैरिटी, बाय द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर. ओके, नाउ यूनिट ऑफ द मोलैरिटी का यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, या नहीं तो आप क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर. ओके, दिस इज अ मोलैरिटी. ये फोर्थ वेज है टू डी एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. अभी आपको 3 वेज देखना है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन. वो ये तीनों वेज होने के बाद आपके इसके ऊपर आप एक एक क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे. ओके, गुड डे.